गुड इवनिंग। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पैरामेट्रिक टेस्ट्स, what are the conditions or what are the assumptions of before you go for conducting parametric tests, and the different examples of parametric tests that also we have discussed. In somehow the concept of when you are going to apply t-test or ANOVA or ANCOVA regression, this all we have discussed. Now there the conditions are also there where the assumptions of parametric conducting parametric tests are not made. At that time इस समय हम लोग ऐसे टेस्ट के बारे में सोचते हैं जो कि जिनके लिए ये सारे कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहला कि we don't bother about that samples should be large, we don't bother about that the samples should be having normal distribution, and basically whatever for a simple short study or simple uh, studies based on some definite number of subjects, when we are not sure about the normality of the distribution, when we are not so sure about that the data collected will be in the ratio or interval scales, then we are going to conduct non-parametric tests. So these are also useful, but these tests are only to be used when there is no chances of conducting parametric tests. So because the generalization based on this non-parametric test are having different challenges, they pose challenges. The generalization should not be so strong, or we can say that these are weaker tests in comparison to the parametric tests. But somehow in many research or many studies, the non-parametric tests are quite useful. Many a times whenever you are conducting where जब हमारे पास हमारा स्टडी का ही नेचर ऐसा होता है, सपोज आप कुछ स्पेशल चाइल्ड पे आप अपना स्टडी करना चाहते हैं, then we cannot suppose that all the parametric conditions will be met. We are very much sure about the data किस तरफ जाएगा, we are totally knowing beforehand. सपोज आप स्पेशल चाइल्ड के ऊपर आप एक स्टडी कर रहे हैं, उनके इंटेलिजेंस और उनके क्रिएटिविटी के बारे में कुछ स्टडी कर रहे हैं, यू आर वेरी मच श्योर अबाउट कि ये जो है नॉर्मल टेंडेंसी को फॉलो नहीं करेगा, इट विल बी स्क्यूड डेटा, टोटली स्क्यूड डेटा होगा। तो हमारे पास ऐसे कंडीशन में हमें तो एक रिसर्च फाइंडिंग लेके आना है, और एक रिसर्च फाइंडिंग ऐसा जिसको कि यूज किया जा सके, then at that condition you have to go for non parametric tests only. So as you can see here, non-parametric tests are also known as distribution-free tests. That means we are not bothered about which type of distribution of the subject's outcome is there. That we don't take care of. किसी तरह का भी distribution हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. We can go for applying non-parametric tests. Are used in statistics when the assumptions of parametric tests that assume a specific probability distribution for the data, जिसमें एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो करता हुआ एक व्हाट यू कैन से चांसेस विल बी देयर, इसके बारे में हम एजम्पशन नहीं मीट कर सकते हैं, तब हम लोग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट सब कंडक्ट करते हैं। और जनरली हमारे, जैसे मैंने उसमें भी बताया था कि आपके जो डेटा जो होंगे, जो इस स्केल से आप कलेक्ट करेंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल। नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल में ज्यादातर डेटा होगा। दैट मीन्स नेम्स कैन बी देयर, रैंक्स कैन बी देयर। ऐसे करके जब आपके पास सिचुएशन होगा व्हेन वी कैन ओनली गेट द डिफरेंट कैटेगरीज, we can only get the ranks of the data, then we are in a position to go for only non-parametric test, because we don't have the conditions which have to be made
फॉर कंडक्टिंग पैरामेट्रिक टेस्ट। तो ऐसे कंडीशन में हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करते हैं। Non-parametric tests are sometimes called distribution-free tests because they are based on fewer assumptions. Examples: they do not assume that the outcome is approximately normally distributed. That I already told you. Parametric tests involve specific probability distribution. पैरामेट्रिक टेस्ट में हमें हमें पता है कि एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को वो फॉलो करेगा। and the test involve estimation of the key parameters of the distribution. Example, the mean or difference in means from the sample data. ज्यादातर आप ये भी बात ध्यान रखिए, whenever we are bothered about the parametric test, maximum of the times we are using the mean for performing different statistics or different tests. But in condition of non-parametric tests, we are maximum of the time we are taking care of the median value को लेके हम काम करते हैं। The cost, now just try to read this one. The cost of pure assumption is that non-parametric tests are generally less powerful than their parametric counterparts. ये अगर हमारे पास assumption सब या condition सब को जब हम दरकिनार कर देते हैं तो ये जरूर है कि हमारे ये टेस्ट जो है वो उतने पावरफुल नहीं होते हैं, और इसलिए हमें इसको हमें तभी यूज करना चाहिए जब हमारे पास पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं करने का सिचुएशन हो, उसी समय हमें इसको यूज करना है। It can sometimes be difficult to assess whether a continuous outcome follows a normal distribution. कब यूज करते हैं उसका एक एग्जांपल दिया है कि आपके पास ऐसा हो सकता है कि जो भी आपके पास जो डेटा आए हैं वो डेटा पॉइंट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो नहीं करते। मैंने आपको एग्जांपल बताया, सपोज यू आर कंडक्टिंग ए स्टडी ऑन स्पेशल चाइल्ड या MR चिल्ड्रन, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, इन सब बच्चों पे आप अगर आप काम करते हैं तो यू हैव गॉट दैट आपके जो डेटा पॉइंट्स आएंगे वो स्क्यूड होंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको ज्यादा वैल्यूज दिखेगा। तो इस तरह के कंडीशन में हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ही यूज कर सकते हैं। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के नॉर्मल प्रोबेबिलिटी या नॉर्मलिटी को वो डेटा पॉइंट फॉलो करता है कि नहीं, उसके लिए हमें यहाँ कुछ टेस्ट दिए गए हैं। केस टेस्ट, कोलमोग्रोव सिमरनोव टेस्ट, एंडरसन डार्लिंग टेस्ट, ये और सैप्यो-विल्क टेस्ट, ये 2-3 ऐसे टेस्ट हैं जिसको कि हम कंडक्ट करके ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। इसमें जनरली हमारा हाइपोथेसिस ये होता है कि डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन अगर आपके पास, मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर आपका डेटा, आपका इस टेस्ट का रिजल्ट सिग्निफिकेंट आ गया, दैट मींस p is less than या equal to 0.05, then we reject the null hypothesis that the data is normally distributed. तो ये तीनों टेस्ट का रिजल्ट सिग्निफिकेंट आना चाहिए। अगर टेस्ट का रिजल्ट सिग्निफिकेंट आएगा तो हम आगे प्रोसीड करेंगे और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट सबको यूज करेंगे। If that these tests are not significant, then we go at the data. You can say that the data is normally distributed, and we can go for conducting parametric test. जो parametric test सब है उसको conduct कर, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमें इस तरह से इसको करना है। You have to first test it that if you can go for conducting non-parametric test or not, and that we should only proceed when these test results are significant. The most practical approach to assessing normality involves investigation. और दूसरी तरह से आप इसको कैसे देख सकते हैं, if you plot a histogram, अगर आप एक हिस्टोग्राम बनाते हैं, आपको जैसे आपको पता है, इसको आसान भाषा में आप समझे, जैसे आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बनाते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, you can see that what is the diagram or what is the graphical diagram, graphical nature of that particular normal प्रोबेबिलिटी कर्व। अगर आपको उसमें कुछ भी स्क्यूनेस दिख जाता है या आप हिस्टोग्राम ही बनाते हैं और आपको दिखता है कि ये नॉर्मल टेंडेंसी को नहीं शो कर रहा है, तो यू कैन आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग, आफ्टर व्यूइंग दैट पर्टिकुलर हिस्टोग्राम आल्सो, वी कैन टेक डिसीजन कि नहीं, हमें what you can say, we go for non-parametric test. You can see different outliers there. बहुत सारे outliers आपको मिलेंगे। outliers के बारे में मैंने बात की थी कि आपको बहुत सारे वैल्यूज जो हैं वो
एक किसी एक तरफ या नॉर्मल टेंडेंसी से अलग दिखेंगे, सो उस केस में आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कर सकते हैं। Whenever the data that you have collected is in the form of ordinal variable or in rank, what you can say rank distribution में अगर आपका है तो आपका, या ऑर्डिनल जिसको बोलते हैं, ऑर्डिनल वेरिएबल और रैंक वही एक ही बात हुआ, और इन नॉमिनल स्केल में अगर है तो हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करते हैं। और इफ यू आर, आपको पता है कि आपका जो डेटा पॉइंट्स है वो किस डायरेक्शन में लाई करने वाले हैं, स्क्यूडनेस भी आपको पता है कि स्क्यूडनेस से इसी लिमिट में लाई करेगा, और ये आपको पता है कि ये व्हाट यू कैन से नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के नेचर को शो नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में भी आप, और एक और भी बात है, जब आपके पास काफी कम सब्जेक्ट्स होते हैं, एक स्मॉल सैंपल होता है, सपोज 7 स्टूडेंट, सपोज 8 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स के केस में भी हम एक छोटे नंबर्स के का सब्जेक्ट्स हो, उस तरह के स्टडीज में भी हमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को ही फॉलो करना पड़ता है। नाउ आई विल गो फॉर सम टेस्ट्स। कुछ टेस्ट के बारे में हम देखेंगे, इसमें से ऐसे तो इसके जैसे पैरामेट्रिक टेस्ट में भी बहुत सारे टेस्ट्स हैं, हमने कुछ टेस्ट के बारे में बात किया, उसी तरह से हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में भी कुछ टेस्ट हैं, और उसमें से हम देखते हैं कि किस टेस्ट के बारे में हम आज बात कर सकते हैं। सो द फर्स्ट टेस्ट विच इज कॉल्ड एज साइन टेस्ट। ये नाम से आपको दिख रहा है, ये ऐसा टेस्ट है जिसमें आपके डेटा, आपके जो डेटा पॉइंट हैं उनका साइन को देखा जाता है। साइन मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू से सिंपल टर्म्स। साइन उसका पॉजिटिव या नेगेटिव है इन कंपैरिजन टू द मीडियन वैल्यू। जो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है, जो हमने नल हाइपोथेसिस का केस लिया है, आप देख सकते हैं कि ये अल्टरनेटिव है वन सैंपल टी टेस्ट या पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का। आपको मैंने बताया था वन सैंपल टी टेस्ट का मतलब है कि आपको एक बेंचमार्क दिया गया है, उस बेंचमार्क से अपने मीन्स आप अपने डेटा पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि वो डिफरेंस है कि सिग्निफिकेंट है। पेयर्ड का भी एग्जांपल आपको दिया गया था कि अगर आपका प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट आप लेते हैं, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट का रिजल्ट का मीन को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, दैट मींस द सेम ग्रुप इज देयर, बट यू आर टेकिंग टू डिफरेंट रीडिंग्स एट टू डिफरेंट पॉइंट्स एंड यू आर ट्राइंग टू सी दैट if there is certain significant difference, then it is a case of paired sample t test and one sample t test। ये दोनों sample t test का ही एक अल्टरनेटिव साइन टेस्ट को समझा जाता है when the parametric conditions are not met। जब आपके पास सैंपल का साइज काफी छोटा हो, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो ना करें, तो उस समय हमें आपके पास कैटेगरिकल वैल्यू डेटा हो, आपके पास ऑर्डिनल स्केल में डेटा हो, तो उस समय हम क्या करेंगे, वी कैन गो फॉर साइन टेस्ट। एंड व्हाट आई टोल्ड यू, साइन टेस्ट का मतलब यहाँ पे है साइन, मतलब साइन प्लस साइन है या माइनस साइन है। आई विल एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। मैंने बताया कि ये मैथमेटिक्स करने से ही ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट इन सिंपल टर्म्स, थोड़ा सा आसान थ्योरेटिकल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स को आपको मैं थ्योरेटिकल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो सपोज आपके पास कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, आपके पास सैंपल एक एन साइज का सैंपल है। ऑफ कोर्स मैंने बताया कि आपका सैंपल का साइज छोटा होगा, आप यू आर कंडक्टिंग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, और आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन है। अब ये ऑब्जर्वेशन को आप एक मीडियन वैल्यू, एक ऐसे रेफरेंस वैल्यू के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि आपका ये वैल्यू जो है उस रेफरेंस वैल्यू से बड़ा है या उससे छोटा है। So that's why you are saying that ये साइन टेस्ट है। साइन का मतलब अगर ये आपका वैल्यू जो है वो बड़ा होगा, then you have got
positive signs, and if you have got smaller values, then you have got negative signs. Suppose that r plus of the observation are exactly greater than n and r minus are smaller than n. अगर आपके पास r है numbers, इतने नंबर, सपोज आपके पास, सपोज मैं एग्जांपल बताऊं, सपोज आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन आपने लिया, 10 में से चार ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं जो कि m जो रेफरेंस वैल्यू है, मीडियन वैल्यू है, उससे ज्यादा है, और 3 ऐसे पॉइंट हैं जिनका नंबर जो है उस रेफरेंस वैल्यू से कम है। तो r प्लस का मार्क, आर आर मतलब पॉजिटिव साइन वाले जो रैंक्स हो गए हैं वो हमारे पास 4 हैं, और नेगेटिव साइन वाले जो नंबर्स हैं या रैंक्स हैं वो हमारे पास 3। तो ये जो साइंस जो आपने कलेक्ट किया, आपको प्लस वाले और माइनस वाले, ये साइन को ही लेके हम इसमें क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। इस दोनों में से जो लोअर वैल्यू हो, जैसे मैंने बताया 4 और 3, 4 और 3 में से लोअर वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 को लेके हम फिर देखते हैं इन रेफरेंस टू दी साइन टेबल का जो क्रिटिकल वैल्यू का जो टेबल है। आप जानते हैं कि हमेशा कोई टी टेस्ट हो, एनोवा टेस्ट हो, काई स्क्वायर हो, सब में आपका रेफरेंस टेबल को देखना पड़ता है। तो आपके एन के रेफरेंस में आपके क्रिटिकल वैल्यू का क्या है वो आप देखेंगे, और इस क्रिटिकल वैल्यू के साथ अगर आपका ये लोअर लोअर ऑफ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो भी लोअर हो उसमें से, आपका प्लस वाला लोअर हो या माइनस वाला लोअर, ये दोनों में से जो लोअर वैल्यू है उसको लेंगे, वो ऑब्टेन्ड वैल्यू होगा, और टेबल वैल्यू जो क्रिटिकल वैल्यू है उससे अगर वो कम है, then we can say that null hypothesis can be rejected. You just see the theory first, मैं एग्जांपल भी बताऊंगा, यहाँ देखिए। तो आपके पास प्लस वाले पॉइंट्स हैं, आपके पास माइनस वाले पॉइंट्स हैं, और जो वैल्यू इक्वल है, कुछ ऐसे वैल्यू होंगे जो m के बराबर भी होंगे, तो वो 0 हो जाएंगे। The value of x which are exactly equal to m are ignored. The sum r plus r minus may be therefore less than n. हमेशा जब ये दोनों रैंक को ऐड करेंगे, जैसे मैंने बोला 10 में से 4 वैल्यू जो है हायर है, 3 वैल्यू जो है लोअर है, 4 3 7 हो गया, और आप मान सकते हैं कि 3 ऐसे वैल्यू है जो इक्वल है, इक्वल वाले को हमने इग्नोर कर दिया। तो ये 4 + 3 7 जो है, ये हमेशा देखिए जो टोटल है 10 से हमेशा कम है ना, वही यहाँ लिखा गया लेस देन एन। वी विल डिनोट इट बाय एन डैश, इसको हम एन डैश से हम डिनोट कर सकते हैं, जो कि नया एन आया है। और इस एन डैश के रेफरेंस में हम टेबल देखेंगे, इस टेबल में क्या वैल्यू दिया गया है क्रिटिकल वैल्यू। अंडर द नल हाइपोथेसिस यू वुड एक्सपेक्ट हाफ ऑफ, अगर अगर हमारे पास व्हाट इज आवर नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस तो ये बोलता है कि नहीं, प्लस वाले साइन और माइनस वाले साइन दोनों बराबर हो, देयर इज नो डिफरेंस। यही हमारा नल हाइपोथेसिस हमेशा यही बताते हैं कि आपके हायर पॉइंट्स भी उतने ही हैं, नेगेटिव माइनस पॉइंट्स भी उतने ही हैं। ये हमारा नल हाइपोथेसिस है, और इसका मतलब है कि आपका परफेक्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें p हाफ है, क्योंकि p अगर हाफ है तो q भी हाफ होगा, और n इक्वल टू n डैश होगा। तो ये हमारे पास परफेक्ट, ये तो आपका नल हाइपोथेसिस का कंडीशन है। नल हाइपोथेसिस में दोनों इक्वल ही होंगे, ये एज्यूम करके हम चलते हैं। लेकिन व्हाट एग्जैक्टली डेटा में हमारे पास क्या है वो हमें, जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि 12 स्टूडेंट्स हैं, 12 स्टूडेंट्स आर देयर, और उनका अटेंशन स्पैन दिखाया गया है इन 2 डिफरेंट पीरियड्स, फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड। कितने देर का अटेंशन स्पैन होता है वो दिया गया है ना। ये आपका स्टूडेंट्स 1 है, पीरियड 1 में उसका अटेंशन 5 मिनट का, पीरियड 2 में उसका अटेंशन 4 मिनट का है, सेकेंड स्टूडेंट्स का पीरियड 1 में 4 मिनट का, पीरियड 2 में 3 मिनट्स का, इस तरह से किया। तो ये अगर आपके पास इस तरह का एक प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम में आप एक तो आपके पास सैंपल काफी कम है, 12 स्टूडेंट ही है। दूसरी बात ये है कि आपके पास ये सिर्फ हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है वो मैटर करता है कि आपका
ये रैंकिंग कर सकते हैं, ऑर्डर बना सकते हैं कि किसका किसका अटेंशन ज्यादा समय के लिए है, उससे कम किसका है, उससे कम किसका है, एक ऑर्डर बना सकते हैं। तो आप देख लीजिए, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि आप यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें पीरियड 1 एंड पीरियड 2 में, अगर यहाँ देखेंगे ये प्लस वाला कंडीशन है कि माइनस वाला कंडीशन है, यू कैन सी दैट दिस इज द कंडीशन ऑफ प्लस 5 माइनस 4, ये 4 माइनस 3, ये 3 माइनस 1, ये सारे चीज से आप प्लस और माइनस को आप कैलकुलेट करें। ये डिफरेंस सब, जिसमें डिफरेंस आपका पॉजिटिव आएगा वो प्लस प्लस हो गया, जिसमें डिफरेंस आपका नेगेटिव आ गया वो नेगेटिव हो। कुछ पॉइंट जैसे ये फिफ्थ स्टूडेंट को देखिए, जिसका अटेंशन स्पैन पीरियड 1 में भी 6 मिनट है और पीरियड 2 में भी 6 मिनट है, तो इसके लिए ये जो साइन जो है वो इग्नोर कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें तो दोनों बराबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव, हम डिसीजन ही नहीं ले सकते। ये टोटल 12, जैसे यहाँ टेंथ स्टूडेंट को भी देखिए 5 मिनट और 5 मिनट दिया गया है, तो इसको भी हमें इग्नोर करना पड़ेगा। तो आपके पास टोटल आपके पास और कोई इक्वल वाला केस तो नहीं दिख रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं कि आपके पास टोटल 10 ऐसे पॉइंट्स मिल गए, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि प्लस और डिफरेंस जो है पॉजिटिव है कि डिफरेंस जो है नेगेटिव। तो आप यहाँ देखिए, आपके पास प्लस वाले 5 हैं और माइनस वाले 6। तो आपके पास मैंने बताया कि ये दोनों का मिनिमम, दोनों को 5 और 6 का मिनिमम 5 होगा, 5 आपने ले लिया, और एन डैश कितना हो गया, 11 हो गया, क्योंकि आपके पास एक ऐसा वैल्यू था जो कि इक्वल था, इसलिए 12 से कम होके 11 हो गया। अब अगर इसको टेबल वैल्यू पे जाके देखते हैं, तो टेबल वैल्यू में हमारे पास जो वैल्यू है वो आपका N11 के लिए आपका वैल्यू जो है 1, और आपका ये दोनों पॉइंट के लिए जो लोअर वैल्यू है वो कितना निकल के आ रहा है, 5 निकल के आ रहा है। आपको मैंने बताया था कि डिसीजन क्या है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स स्मॉलर ऑफ द नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस, इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस में से स्मॉलर वाला, मतलब स्मॉलर वाला क्या है, यहाँ 5 है। और डिसीजन कैसे लेते हैं, रिजेक्ट एज जीरो इफ द स्मॉलर ऑफ द नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, दैट इज 5 हियर, 5 यहाँ पे, लेस देन क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम द टेबल, क्रिटिकल वैल्यू कितना है, 1 है, तो 5 क्या लेस देन 1 है, तो ये तो गलत है, 5 तो लेस देन 1 नहीं है, इसलिए हमारा ये केस जो है इसमें हम रिजेक्ट नहीं कर सकते नल हाइपोथेसिस को। नल हाइपोथेसिस आपका होल्ड करेगा। यू कैन से दैट देयर इज नो डिफरेंस in the attention span of the students in between period 1 and period 2। अगर कोई ऐसा हाइपोथेसिस बनाया हुआ है कि क्या बच्चे का अटेंशन स्पैन दो कंटिन्यूअस पीरियड के बीच में क्या सिग्निफिकेंटली डिफर करता है, इस केस में अगर हमने ये स्टडी लिया है, नल हाइपोथेसिस है कि देयर इज नो डिफरेंस इन द अटेंशन स्पैन, और आपका अल्टरनेटिव होगा कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो इस केस में साइन टेस्ट को हम यूज कर सकते हैं, और इस तरह से हमारा ये डिसीजन। सो दिस इज अबाउट साइन टेस्ट। साइन टेस्ट को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। सेकेंड वन विच इज मोस्ट कॉमन वन, बहुत बार हम साइन टेस्ट को उतना नहीं सुने होंगे, लेकिन काई स्क्वायर टेस्ट जो है मल्टीपल टाइम्स वी हैव हर्ड अबाउट दिस काई स्क्वायर टेस्ट। कभी भी हम अगर रिलेशनशिप या एसोसिएशन निकालने की बात करते हैं, जेंडर एंड टाइप ऑफ स्कूल का कोई रिलेशनशिप है कि नहीं, एसोसिएशन है कि नहीं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का और अचीवमेंट के साथ कुछ एसोसिएशन है, ये है कि आप इसको जब हमारे पास पैरामेट्रिक कंडीशंस के लिए हम इसको यूज करते हैं, बट यू कन्वर्ट इट इनटू रैंक डेटा और फ्रीक्वेंसी डेटा में हम इसको बदल लेते हैं। बदलने के बाद हम फिर कैटेगरिकल डेटा में बदल लेते हैं, और उसके बाद हम उसमें इसको यूज करने की कोशिश करते हैं। बट एग्जैक्टली काई स्क्वायर टेस्ट इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है used to determine the significant association or relationship between two categorical variables। वो categorical variable जैसे जेंडर का कैटेगरी हो गया मेल फीमेल, और थर्ड जेंडर, इस तरह से कैटेगरी हो गया, एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब हाई एवरेज लो, ये दोनों के बीच में अगर आपको एसोसिएशन निकालना है, यू कैन गो फॉर कंडक्टिंग ए काई स्क्वायर टेस्ट।
It is often used to assess the independence of variables in a contingency table. एक contingency table बनाते हैं, we will just see कि contingency table है क्या. But there are different types of chi-square test. आप different types of chi-square test हम use कर सकते हैं. Goodness of fit के लिए chi-square use करते हैं. Independence of observation के लिए chi-square use करते हैं. तो different तरह के chi-square test हैं. The concept of a chi-square test revolves around comparing the observed frequency of certain events in categorical data with the expected frequency. Generally जब हमारा chi-square हम यूज करते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती हैं. एक है हमारे पास कि एक जो ऑब्जर्व जो फील्ड में हमें दिख रहा है, जो हमने कलेक्ट किया डेटा, और एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम उसका निकालते हैं. ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं और फिर उसको यूज करके वी मेक कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ chi-square. chi-square का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद अगेन यूज फाइंड आउट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फाइंड आउट करते हैं. और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के रेफरेंस में हम जाके देखते हैं टेबल, और टेबल में जो वैल्यू अगर क्रिटिकल वैल्यू जो है वो उससे ज्यादा chi-square का वैल्यू आ गया है, देन वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एंड वी से देयर इज एसोसिएशन और देयर इज रिलेशन. ये सिंपल, ये आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट या स्टेप्स है व्हेन यू आर गोइंग फॉर कंडक्टिंग ए chi-square टेस्ट. इन डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि कब आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल में बहुत कम लोअर फ्रीक्वेंसीज रहेगा तो आप क्या करेक्शन फैक्टर यूज करते हैं, किस समय आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को सर अलग अलग तरह से निकाला जाता है. जब आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो किस तरह का बातें यूज किया जाती है. कंटीजेंसी टेबल हो उस समय क्या यूज करना है, अलग अलग चीजें हैं. बट many a times these are the steps that we have to follow. The overall general theory is that you just have to calculate the observed frequency. We get the expected frequency by using observed and expected frequency. We calculate chi-square values, or then in reference to degrees of freedom, we just try to see that if the calculated chi-square value is crossing the critical value, the critical value को cross कर जाता है, then we of course we reject the null hypothesis. तो ये in general इस तरह से chi-square फंक्शन करता है. तो वही जो मैं बता रहा था, formulate the null hypothesis and alternative start by stating the null hypothesis typically assumes that there is no association or relationship between the variables. The alternative hypothesis suggests that there is significant relationship. So alternative हम लोग ज्यादातर null hypothesis लेके चलते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि there is no association, there is no relationship. But alternative is that there is significant relationship and significant association. फिर एक contingency table बनाते हैं जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे. जनरली ये 2A टेबल होता है, क्रॉस टेबुलेशन करते हैं. SPSS में भी हम लोग क्रॉस टैब यूज करके इसको सॉल्व करते हैं. और इसमें हमें ज्यादातर हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को दिखाते हैं और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को भी डिनोट करते हैं, और उसके बाद हम chi-square का फॉर्मूला यूज करके वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ chi-square. नाउ फॉर एग्जांपल वेदर देयर इज एसोसिएशन है. हम अगर एक ऐसा स्टडी करते हैं that if there is an association between gender and the preference of a color, pink or blue color, among a group of students, अगर हमारे पास एक ऐसा स्टडी आया कि क्या जेंडर का कुछ कलर स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस है फॉर ए पर्टिकुलर कलर, पिंक कलर एंड ब्लू कलर को लेके कोई प्रेफरेंसेस है कि इफ देयर इज एन सर्टेन एसोसिएशन, अगर कोई एसोसिएशन है कि बॉयज जो हैं वो इस पर्टिकुलर कलर को सिग्निफिकेंट आएगा, देन यू कैन से देयर इज एसोसिएशन. अगर आता है सिग्निफिकेंट वो एसोसिएशन है, वी कैन से दैट यस बॉयज आर what you can favoring particular color, girls are favoring particular color, or particular gender is associated with a particular color. ये हम कह सकते हैं. but what outcomes we are getting real field में हम क्या, ये स्टीरियोटाइपिंग हो सकता है. स्टीरियोटाइपिंग ऐसा हो सकता है. हाँ,
पिंक कलर जो है लड़कियों के लिए, ब्लू कलर जो बॉयज के लिए है, दैट वी कैन से फ्रॉम द सोसाइटी ऑब्जर्वेशन. बट व्हाट इज द जनरल फील्ड आउटकम, रियलिटी में क्या है? तो आपने एक स्टडी किया और उस स्टडी में आपने बॉयज और गर्ल्स से उनके कलर प्रेफरेंस, जिसमें आपने दो कलर प्रेफरेंस ही बताया, तो इन बिटवीन ब्लू एंड पिंक आप कौन से कलर को प्रेफर करें, दैट इज वाज योर चॉइस. आपने उनको दिया कि इसमें आप चॉइस. So the null hypothesis is there is no association between gender and the preference of pink or blue color, and the alternative hypothesis is there is an association between gender and the preference of pink or blue color. ये हमारा null और alternative hypothesis रहा. Now this is the contingency table which I was talking about. Of course it has got only the observed value. ये observed value है, ये expected value नहीं दिखा रहा है, but we can have the expected value. So एक contingency table है, create a contingency table that will observe frequency for two categorical variable gender and preference. Copy T लिखा हुआ है, actually it is pink and blue color. I just try to change the क्वेश्चन जिससे कि ये एक एजुकेशनल प्रॉब्लम के लिए सही हो. सो इट इज एक्चुअली पिंक एंड ब्लू कलर. सो ये अगर हमने देखा कि इस तरह से अगर आपके पास डेटा है, बॉयज एंड गर्ल्स हैं और पिंक कलर और ब्लू कलर के बारे में बात कर रहे हैं, और ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है. आपने जो डेटा कलेक्ट किया वो आपने बॉयज में 40 लोगों ने बोला कि दे प्रीफर पिंक एंड 60 लोगों ने बोला कि दे प्रीफर ब्लू कलर. एंड इन द गर्ल्स they said that 30 girls said that they prefer pink color, and the 70 girls told that they prefer blue color. This is from the field you calculated. ये आपने फील्ड से लेके आया और ये आपको ऐड किया गया है 100 100 200 और इधर 70 130 200. So this is the observed data. ये observed data है. But I told you that you have to get the expected frequency. Expected frequency आपको निकालने के लिए फॉर्मूला है कि you just multiply the column with the row. Suppose you want to get the expected frequencies for boys preferring pink color, you will multiply 70 into 100 divided by 200. That will give you expected frequency. Similarly, for boys preferring blue color, you will multiply 130 into 100 divided by 200. So this way, for the girls with pink preferring pink color, we will multiply 70 into 100 divided by 200. And this for the girls 130 into 200 divided by 200. So in that way, you will get the expected frequencies. Expected frequencies आपको मिल जाए. So that is only done here. आपने यहाँ जैसे जो मैं बता रहा था, expected frequencies for boys with pink color के लिए expected frequency ऐसे आप निकालेंगे, row total into column total by grand total. This is the formula. Basically this formula you use in contingency table to find out the expected frequencies. row total by column total divided by the grand total. grand total से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे कॉलम में जो भी चार फ्रीक्वेंसीज हैं उनको आपको निकालना है. तो दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज. So you have got the observed frequencies, you have got the expected frequency. Observed frequency आपके पास है, expected frequencies आपके पास है. Then the chi-square formula is observed minus expected square divided by expected, और उसका समेशन करेंगे आप. That means for the first cell, जो first cell आपने देखा था, boys having pink color, the chi-square value is 40 उसका ऑब्जर्व है, देखा उसमें 40 था सेल एंट्री, एंड 35 we have got from the expected frequency formula. 40 minus 35 that is 5 का स्क्वायर divided by 35 that is 0.714. और इसी को ये चारों सेल के लिए आप करेंगे. आपके पास 4 सेल था, चारों सेल के लिए आप इसको यूज करेंगे. तो आपके पास 4 सेल था, you have got these 4 cells.
यू हैव गॉट दी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी सब है इसमें, सब में ऑब्जर्व लिखा हुआ है, एंड यू हैव गॉट दी एक्सपेक्टेड आल्सो, यू हैव गॉट दी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉर्मूला, आपने फॉर्मूला से एक्सपेक्टेड निकाला हुआ है सबके लिए। मैंने बताया फॉर्मूला क्या है, रो टोटल बाई कॉलम टोटल, रो टोटल इंटू कॉलम टोटल बाई ग्रैंड टोटल, इससे आपने एक्सपेक्टेड निकाल लिया है। तो ये सब आपके पास जब ओ और ई सब है, इस ये इसका वैल्यू जो है, पहले वाला का वैल्यू ये 0.714 है, इस तरह से आप दूसरे वाला को लेंगे, तीसरे वाले को लेंगे, चौथे को लेंगे, और ये चारों को जब ऐड करेंगे, when you add this all four, then you got the combined total chi-square value, total chi-square का वैल्यू आपको मिलेगा। और ये जब टोटल chi-square का वैल्यू मिलेगा, then you just try to see the table, or for seeing the table you have to know the degrees of freedom। degrees of freedom का फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ रोज -1, नंबर ऑफ कॉलम -1, देयर मल्टीप्लीकेशन। तो हमारे पास रो 2 है, कॉलम भी 2 है, हमने देखा, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 1 into 1 1। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 टू सी द टेबल ऑफ काई स्क्वायर का वैल्यू आप देखेंगे। और अगर काई स्क्वायर का फेस वैल्यू में अगर आपको ऐसा दिखता है कि आ, आपने क्रिटिकल वैल्यू वहां से जाके देखेंगे, एंड योर चोजन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 0.05, और ये आपको देखने से मिलेगा वहां, अगर आप काई स्क्वायर का वैल्यू देखते हैं तो यू विल गेट द वैल्यू एज 3.841, 3.841 ये आपका वैल्यू है। और आपका जब आप ये इसको जब देखते हैं, 3.841 आपको टेबल से मिला है ना, 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे अल्फा 0.05 लेवल पे आपका जो टेबल वैल्यू है या क्रिटिकल वैल्यू है 3.84 है। और आपका जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो मैंने बताया चारों सेल का ऑब्जर्व माइनस यो जो फॉर्मूला से आपने निकाला है, चारों को जो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आया, इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू फेल टू, तो अगर ये जो ऑब्टेन, मान लीजिए आपका ऑब्टेन वैल्यू, सपोज ऑब्टेन वैल्यू जो है वो आपका काई स्क्वायर जो ऑब्टेन्ड है वो आपका मान लीजिए 4 आ गया, तो 4 इज हायर देन 3.841, अगर ये हायर है देन यू रिजेक्ट नल है। That means you can say that there is association between the gender and the color choice. But if you have got chi-square something less than this value, suppose 3.5 आपको मिला है, 3.5 we have got, then of course this 3.5 is less than 3.841, so you fail to reject null hypothesis, and you can say that there is no association between gender and their color preferences. So in this way आप chi-square को यूज करते हैं, आपने कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये आपका chi-square इस तरह से काम करता है। Now coming to the next test, है that is मैकनेमार्ट टेस्ट। मैंने आपको सबसे ज्यादा यूजफुल जो टेस्ट है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट इज काई स्क्वायर टेस्ट। इसके अलग अलग केसेस भी हैं, आप उस केसेस को जब आप काई स्क्वायर को स्पेसिफिक वे में लेके पढ़ेंगे तो उस समय बताया जाएगा। लेकिन कुछ और ऐसे टेस्ट हैं जो स्पेसिफिक कुछ कुछ कंडीशंस में हम यूज करते हैं, उनमें से एक ऐसा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जिसको कि मैकनेमार्ट टेस्ट बोलते हैं। So it is a non-parametric test, इसमें भी contingency table बनता है, so that in that way you can say that it is similar to the chi-square। आप इसमें भी contingency table बनाते हैं, और यहाँ जनरली आपके पास एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि डाइकोटोमी दिखाता है, आपको ये दिखाता है कि either you pass or fail, either you have completed or not completed। मतलब एक वेरिएबल जो है वो 2 कैटेगरी में होता है ना, ये आप देख सकते हैं। चेक द मार्जिनल होमोजेनिटी ऑफ 2 डाइकोटोमस वेरिएबल, द टेस्ट रिक्वायर्स 1 नॉमिनल वेरिएबल with 2 categories and 1 independent variable with 2 dependent।
तो आपके पास एक तो जरूर होगा जो कि डाइकोटोमस होगा, और दूसरा जो होगा उसमें दो कैटेगरी होगा, कॉन्टिन्यूअस हो लेकिन दो कैटेगरी हो, जैसे कि जेंडर, जैसे कि आपका व्हाट यू कैन से सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस स्केल है, बट यू कैन मेक द कैटेगरी, आप कैटेगरी बना सकते हैं। जेंडर में आप यू कैन से दैट it is not categorical, it is categorical but it is not continuous, continuous तो नहीं होगा, आपके अलग अलग कैटेगरी। तो ये नॉमिनल हो सकता है, नॉमिनल वो एग्जांपल है, नॉमिनल का एग्जांपल है, यू कैन से बॉयज एंड गर्ल्स, यू कैन से पास एंड फेल, यू कैन से इंटरेस्टेड नॉन इंटरेस्टेड, यू कैन से मेल एडजस्टेड एडजस्टेड, इस तरह का एक होगा जो कि नॉमिनल वेरिएबल है। एंड वन वेरिएबल विच इज having two different categorization maybe, but it may be continuous but two different categorization. The McNamara test is a statistical test used to analyze the association or dependency of two paired categorical variables. It is often employed when we have two related groups of subjects and want to determine if there is significant change in the distribution of a particular attribute between the two time points, conditions or treatments. आप इस तरह से देख सकते हैं कि एक ग्रुप में एक ट्रीटमेंट दिया गया, एक ग्रुप में ट्रीटमेंट नहीं दिया, क्या कुछ डिफरेंस आता है क्या। नाउ दिस, so I was talking about this one, McNamara test. So generally the McNamara test is a statistical test used to analyze the association or dependency between two paired categorical variable. Suppose पेयर कैटेगरिकल वेरिएबल का, जैसे मैंने आपको बार बार एग्जांपल दिया है कि अगर एक ही ग्रुप को अगर आप दो बार टेस्ट करते हैं, या एक ही ग्रुप में आप एक टूल को एडमिनिस्टर करते हैं, या एग्जांपल के लिए आपने एक ग्रुप का जैसे प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट वाला बात कहा, तो अगर इस तरह का कंडीशन है जहाँ पे प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट की बात है, सपोज यू वांट टू सी दैट कि किसी एक मेथड से पढ़ाने से क्या बच्चे का अचीवमेंट में बढ़ता है, या कोई, या उसका क्रिएटिविटी बढ़ता है, तो व्हाट वाज द कंडीशन बिफोर द टेस्ट, व्हाट इज द कंडीशन आफ्टर द टेस्ट। अगर इस तरह की बात है और आपका नॉन पैरामीट्रिक कंडीशन है, मतलब मान लीजिए आपके पास एक बहुत छोटा ग्रुप है, देन यू गो फॉर मैकनेमार्ड टेस्ट। If there is a significant change in the distribution of a particular attribute between the two time points, ये दो time points हो गया, एक प्री टेस्ट और एक पोस्ट टेस्ट। Here इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए is there significant change in condition from time 1 to time 2? Is there a significant difference in outcomes for two related groups? It works with a contingency tables that displays the count of four different scenarios, typically denoted as A, B, C, D. मैंने बताया कि आपको इसमें एक contingency table बनाना होता है। तो ये contingency table आप जानते हैं कि आपके contingency table में, just try to see, in your contingency table there will be four 2 by 2 अगर है ये,
तो 4 boxes आर देयर। सो यहाँ पे भी आपके पास 4 ब्लॉक्स होते हैं, ए बी सी एंड डी। तो ये 4 जो ब्लॉक हैं ए बी सी डी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, जस्ट ट्राई टू सी। पहला है it works with a condition that displays the counts of 4 different scenarios typically denoted A B C D। A का मतलब है subject with attribute at both time points। अगर आपके पास, जैसे मैं बताऊं कि जैसे आपका एग्जांपल हो गया कि आ, आप पर्टिकुलर टेस्ट में आप एक मेथड से पढ़ाई कर रहे हैं, उस मेथड को पढ़ाने से पहले भी आप अच्छे थे और मेथड यूज करने के बाद भी आप अच्छे, वही है सब्जेक्ट विद एट्रीब्यूट्स एट बोथ टाइम पॉइंट्स। वो आपका ए से डिनोट हो रहा है। अगर आपके पास वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट जो था उस मेथड के करने से पहले भी था और मेथड के यूज करने के बाद भी, दैट इज ए। सब्जेक्ट्स विद द एट्रीब्यूट एट टाइम 1 बट नॉट एट टाइम। अगर आपके पास कोई ऐसा चीज था जो कि आप पहले तो आपके अंदर था लेकिन बाद में वो आपके वो उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन के बाद वो आपके पास नहीं रहा, तो वो आपका हो जाएगा बी। आई विल एक्सप्लेन विथ वन एग्जांपल, हम लोग देखेंगे। सब्जेक्ट विद एट्रीब्यूट एट टाइम 2 बट नॉट एट टाइम 1, यही 4 कंडीशन हो सकता है। सब्जेक्ट्स विद द एट्रीब्यूट एट टाइम 2 बट नॉट, ऐसा कंडीशन हो सकता है कि उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के बाद आपके अंदर कुछ आ गया जो कि पहले नहीं, तो वो कंडीशन होगा सी का। और ऐसा पॉइंट सब्जेक्ट के अंदर या तो ट्रीटमेंट करे हो या ट्रीटमेंट नहीं की हो, पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं, वो कंडीशन हो गया आपका कंडीशन डी। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि अगर आप सपोज आपको मैथमेटिक्स, एक सिंपल एग्जांपल में आपको मैथमेटिक्स आती है, आपका एक मान लीजिए कि आप 10 बच्चों का ग्रुप है, 10 बच्चों में मान लीजिए कि आपको मैथमेटिक्स आती है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसको मैथमेटिक्स आ रही होगी, अच्छा कर रहे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मैथमेटिक्स नहीं जान रहे और उनके लिए आपने कोई एक इनोवेटिव मेथड यूज करके उनको पढ़ाया। तो ये जो आपको मैथमेटिक्स आ रही है, जिन बच्चों को मैथमेटिक्स पहले से आ रही है, दैट डिनोट्स ए, है ना। ये आपके ट्रीटमेंट से पहले से ही वो ठीक थे, लेकिन जब आपने ट्रीटमेंट दिया, आपने मैथमेटिक्स एक मेथड से पढ़ाया, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे बच्चे जो कि मैथमेटिक्स उस समय पहले नहीं आता था लेकिन बाद में उनको आने लगा, दैट डिनोट्स दी कंपोनेंट बी। ऐसा हो सकता है कि आपका ऐसे भी कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो कि आपका 1 के समय तो उसमें नहीं था, मैथमेटिक्स उनको नहीं आ रहा था, लेकिन आपका जब आपने जब उस पर्टिकुलर मेथड यूज किया है उसके बाद ही वो आया है, दैट इज दी व्हाट यू कैन से। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? दिस मैं आपको अब एग्जांपल जब हम देंगे तो बता सकते हैं आपको। आपका ऐसा हो सकता था कि आपको मैथमेटिक्स पहले से आती, वो आप टेस्ट देते या नहीं देते, आप वो मेथड से पढ़ाई करते या नहीं करते, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी, दैट इज द कंडीशन ए। ऐसा हो सकता है कि आपका जो मैथमेटिक्स जो है वो आपका उस मेथड से पढ़ाने के बाद अच्छा हो, दैट इज कंडीशन बी। थर्ड कंडीशन इज दैट कि आपके ऐसे ग्रुप थे जिनका कि मैथमेटिक्स पहले से अच्छा नहीं था, लेकिन आपके जो उस मेथड के कारण कुछ ऐसे बच्चों में, है ना, कुछ ऐसे बच्चे जो कि उनको उस पर्टिकुलर मेथड से पढ़ने के बाद ही वो सीख पाए, दैट इज द कंडीशन सी। एंड ऐसा है कि आप पहले भी मैथमेटिक्स नहीं जान रहे थे, उस मेथड से पढ़ाने के बाद भी आपको मैथमेटिक्स आप कुछ नहीं सीख पाए, तो आपका वो पोजीशन जो होगा वो आपका कंडीशन डी होगा। मतलब पहले भी आपकी मैथमेटिक्स उस मेथड से कोई असर नहीं पड़ा, यू आर स्टिल ए फेलियर, तो आपका वो जो है वो डी के द्वारा डिनोट होगा, है ना।
ऐसा केस हो सकता है। ये 4 केस हम जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस पर्टिकुलर एक एग्जांपल के साथ हम देखने की कोशिश करते हैं इसको। बिफोर गोइंग टू द एग्जांपल, हमने ऑलरेडी आपको बताया कि बी और सी ये तो फॉर्मूला, आपने फॉर्मूला पहले देख लीजिए आप बिफोर गोइंग टू द एग्जांपल। ये आपके पास ये टेबल है, इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें सी है और इसमें डी है। फॉर्मूला इज बी माइनस सी। आपको ये इस दोनों का यूज है, बी माइनस सी इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी प्लस सी। अब इसको हम यूज करते हैं और उसके बाद आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को ऑब्टेन करते हैं। ये भी जो वैल्यू आएगा वो एक काई स्क्वायर का वैल्यू आ गया, क्योंकि कॉन्टिजेंसी टेबल है, काई स्क्वायर वैल्यू विल गेट। और आपका क्योंकि 2x2 का कंटीजेंसी टेबल है, बाय द फॉर्मूला ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रो -1 कॉलम -1 दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 हो गया। यू गेट द क्रिटिकल वैल्यू। और उसके बाद आप टेस्ट करेंगे कि आपका जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा होगा तो यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। वी कैन से दैट मेथड इज इफेक्टिव। उस मेथड के कारण असर हुआ है, बच्चे का मैथमेटिक्स अच्छा हुआ है। और अगर आपका क्रिटिकल वैल्यू जो ऑब्टेन वैल्यू है वो क्रिटिकल वैल्यू को नहीं क्रॉस करता है, देन यू कैन से दैट इट इज नॉट इफेक्टिव। जैसे ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका एक ऐसा हो सकता है, यू हैव 100 स्टूडेंट्स एंड यू वांट टू नो इफ देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who passed an exam before and after the new method was introduced। तो आपके पास कंडीशन ये है कि आपके पास जब वो मेथड यूज नहीं होता था तो 45 लोग पास किए, और वो मेथड जब फेल कितने किए 55, क्योंकि 100 टोटल है। जब वो मेथड यूज होने लगा तो कितने लोग पास कर रहे हैं 30, और फेल कितने कर रहे हैं 70। तो दिस इज द कंडीशन, ये आपका प्रॉब्लम है, ये कंडीशन है। नाउ जस्ट ट्राई टू सी यू कैन गेट द। मैंने बताया ए का मतलब है कि जो कि दोनों समय में पास कर रहे हैं। दोनों समय में पास करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं 30 हैं, क्योंकि दिस इज द लेसर नंबर आफ्टर 30। ये बिफोर ज्यादा कर रहे थे और 30, ये दोनों में से लोअर नंबर 30 है। 30 जो है वो कॉमन है, 30 जो है वो ये ऐसा है जो कि दोनों टाइम से वो पहले भी पास कर रहे थे और उस मेथड को यूज करने के बाद भी पास कर रहे हैं। बी जो है स्टूडेंट्स हु पास बिफोर बट नॉट आफ्टर। तो ये बिफोर कितने पास कर रहे थे 45, और आपके आफ्टर कितने पास कर रहे हैं 30। तो आपके पास ऐसे स्टूडेंट जो कि पहले पास कर रहे थे लेकिन अब पास नहीं कर रहे हैं, दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट 45 माइनस 13 50। और थर्ड कंडीशन है स्टूडेंट्स हु पास आफ्टर बट नॉट बिफोर। आफ्टर कितने पास कर रहे थे बट पहले जो पास नहीं कर रहे थे। तो ये 55 में से ही मैं 30 माइनस करके, क्योंकि 55 फेल थे लेकिन पास अब कितने हो गया 30, तो उसमें से -30 करने के बाद आपके पास ऐसे बच्चे आ गए हैं जो कि आपके आफ्टर बाद में वो पास करने वाले। और बाकी कितने बच्चे बचे बच गए, स्टूडेंट्स हु फेल्ड बोथ टाइम्स। 100 में से ये सब बच्चे तो पास वाले हैं, 30 15 25, ये सबको ऐड करके माइनस करने से यू गेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन बोथ टाइम्स। तो आपके पास ए बी सी डी चारों वैल्यू आ गया। नाउ यू गो फॉर दिस पर्टिकुलर टेबल। आप इस टेबल पे जाएं, ये तो नाउ यू कैन सी द टेबल। आपके पास ये निकाला गया ए बी सी डी, ये ऑल यू हैव गॉट। अब ए बी सी डी का वो फॉर्मूला जो आपको बताया गया था, बी माइनस सी उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, यू गॉट द वैल्यू 2.5। अगर ये 2.5 जो है वो वैल्यू जो है आपके जो टेबल वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू पे वैल्यू से अगर आपका वो ज्यादा है तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा एंड यू कैन से दैट द मेथड इज इफेक्टिव। बट इफ यू हैव गॉट द क्रिटिकल वैल्यू ऑब्टेन, द ऑब्टेन वैल्यू इज
less than the critical value, then we can say that null hypothesis has to be retained, जो retain करना पड़ेगा। और इसलिए आपको आपके पास यही है, since p value, अगर आपका p value जो है लेस होगा, you would conclude that there is a significant difference। अगर आपका p value, मैंने critical value के point of view से बताया, chi square के वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, मैंने हमेशा बताया कि chi स्क्वायर का या टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अगर टेबल वैल्यू से ज्यादा है, then you can say that the null hypothesis can be rejected। but in terms of p value, if the p value is 0.05 or less, then you can say that null hypothesis can be rejected। so मैकनेमा टेस्ट में हम chi स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं whenever you just try to, we have a condition of डाइकोटोमी, जैसे यहाँ दिख रहा है पास और फेल का कंडीशन, और 2 पॉइंट डिफरेंट इंटरवल पे आप डेटा ले रहे हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप से, तो इस कंडीशन में हम मैकनेमा टेस्ट यूज करते हैं। ओके, सो आई विल कंटिन्यू विथ विल्किंसन रैंक सम टेस्ट, इससे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट टुडे आपको मैंने बताया द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन टेस्ट, then chi-square test and मैकनेमा टेस्ट। 3 टेस्ट आई हैव कवर्ड। 3 जो आपका टेस्ट है इसको आप देखिए, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के 3 टेस्ट हैं। we will go with मैन-वाइटनी यू टेस्ट, then we will have that फ्रीडमैन टेस्ट एक देखेंगे हम लोग, and then we can see the run test also, रुस्काल का जो टेस्ट है उसको भी हम लोग देखेंगे। 2-3 और टेस्ट के बारे में हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे। सो दिस 3 टेस्ट आई हैव डिस्कस्ड, सो वी विल प्रोसीड विथ मैन-वाइटनी यू टेस्ट। मैन-वाइटनी यू टेस्ट से हम लोग आगे देखेंगे 2-3 टेस्ट के बारे में। ऑफ कोर्स इन द in conducting research we generally use the parametric test, but still because these tests are there, we should know that when we are going to use these tests, तब हम लोग इसको use करते हैं। Maybe these are not powerful, but still these tests are very much useful। Okay, thank you।